Hello students, in this today's lecture I will discuss the concept of electric flux with you. Okay, to understand this concept we are going to discuss some basics which are required to clear this concept. Out of those, the very first thing is the area vector. Got it? Now, since we are all familiar with the surfaces, the surfaces, they can be the flat surfaces, they can be the curved surfaces. And every surface, whether it is flat or it is curved, it has some area. Now since we have to use area vector in this concept of electric flux. Now what is area vector? Now let us consider a flat surface which will have some area. Okay, now area vector is nothing but it is the product of the magnitude of the area of the surface and the unit vector which is perpendicular to the surface. Got it? Now let us suppose it is the flat surface. It is the flat surface which is horizontal. Okay, and this flat surface, let us suppose it has some area, say A. Okay, and if suppose we are talking about the area vector of the surface, then this area vector, it is nothing but the product of the magnitude of the area of this flat surface multiplied with the unit vector which will define the direction of this area vector, and this unit vector is perpendicular to the surface. Okay, now let us suppose that n cap is the unit vector which is perpendicular to the surface. N cap is the unit vector which is perpendicular to the surface. Now when we are writing this vector A equal to capital A multiplied with n cap, this capital A is the area of the surface, okay, and n cap is the unit vector perpendicular to the surface. So since we can say that area vector is always perpendicular to the given surface and its magnitude is always equal to the area of that given surface. Got it? Clear? So students, you have to note it down, and I am giving you the definition. Area vector, it is the vector which is perpendicular to the surface, okay, and its magnitude is equal to the area of the surface. Got it, sirs? Okay, is it clear to you? Fine. Now, have you noted this? Now, the most important point regarding area vector is that area vector is always perpendicular to the surface. So, the important point, area vector is perpendicular to the surface. Got it? बेटा इतनी बात समझ आ गई? Okay. Now,
Since how to mark area vector or how to consider the area vector of the different surfaces. Out of all the surfaces, they can be the flat surfaces, they can be the curved surfaces. Surfaces, they can be the flat surfaces. Okay, and they can be the curved surfaces. Okay, now sirs, whenever you are talking about the flat surface, then the area vector, it can be marked anywhere on that surface. Got it? Clear? That is, in case of the flat surfaces, the direction of area vector is always same whenever it is marked at the different points on it. Okay? The direction of area vector is same at every point. On the flat surface. Okay sirs, बेटा ये सिंपल सी बात समझ आ गई. अभी इसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है? But sirs, whenever we are having a curved surface, then the area vector, whenever you have to mark out the area vector on the curved surface, then the problem is that when area vector is marked at the different points on the curved surface, it will have different directions. So since whenever you are having the curved surfaces, then how to mark the area vector or how to use this area vector? Whenever you are having the curved surfaces, then since you have to first of all consider the area element. Okay, that is, we are going to divide, or we have to just imagine, that is, if the entire curved surface is divided into smallest identical possible parts. For example, since you are familiar with the football, okay, the different patches, they are stitched together, okay, and when the football is inflated with air, it becomes a sphere. Got it? All those stitched patches, okay, they can be considered as the smallest possible parts with which the football is made up of. Okay, so taking that particular patch, we can call this particular patch as the area element. Okay, for example, whenever we are having the curved surfaces, then consider that the curved surface is divided into smallest possible and identical parts. Okay, clear? Now since we can call each part as the, or we can consider each part as the area element. Now, each part is the area element. Now, let us take a look how to mark the area vector on a curved surface. Let us suppose, say it is a football, and I am considering the first patch over here, the second patch over here, the third patch over here, and the fourth patch over here. Clear?
Now students, whenever you are having curved surface, then students, we cannot mark the area vector, we cannot consider the single area vector as it was in the case of the flat surface. Whenever you are having curved surface, then what do you have to do? You have to consider the area element, and we can mark the area vector of that particular area element only. Okay, मतलब स्टूडेंट्स जब कर्व सरफेस है तो आप सिर्फ एक एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे और उस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर कंसिडर करेंगे, मतलब मार्क करेंगे. लेट अस सपोज say vector ds1. Vector ds1 is the area vector of this element which is located at the point say A. Clear? Similarly, if we are talking about any other area element, then vector ds2 is the area vector which is considered or which is marked at the point B. Got it? Similarly, let us suppose we are considering an area element at the point C. Then its area vector is vector ds3. Similarly, if we are considering the area element at the point say D, then its area vector is say ds4 vector. Okay, sirs? Clear? Now, in the case of curved surface, clearly, since the area vector will have the different directions when it is considered or it is marked on the different area elements. Clear? Now, copy. So, since whenever you are having the curved surface, then always what you have to do? You have to consider the area element first of all, and then mark the area vector of that particular area element only. Okay? अब देखते हैं सर, अगर हमारे पास फ्लैट सरफेस है, लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ क्यूब. We are having a cube. Cube has 6 different faces, but every face is flat. Okay? Clear? Okay? So yes, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेस होने वाला है गॉस लॉ का. ओके? और उसमें एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक है एरिया वेक्टर, तो इसको बड़ा क्लियर करें आप. Now sirs, what we are doing? We are considering a cube. अब बेटा क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस अपने आप में एक फ्लैट सरफेस होता है. ठीक है? तो फ्रेंड्स, जब आप एरिया वेक्टर मार्क करेंगे, आप एक पर्टिकुलर फेस का मार्क करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज से अगर आप टॉप फेस का एरिया वेक्टर मार्क करते हैं, तो टॉप फेस का एरिया वेक्टर, लेट अस सपोज इट इज A1 वेक्टर, इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. गॉट इट? अब अगर हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब में टॉप फेस है, इस टॉप फेस का एरिया वेक्टर मार्क करना है, तो बेटा टॉप फेस पर, सिर्फ टॉप फेस पर जहां मर्जी मार्क करिए, हर बार सेम डायरेक्शन आने वाली. समझ आ गई बात? कर्व्ड सरफेस के साथ कंपेयर करिए. लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्फीयर, एग्जांपल फुटबॉल. ओके? अब फुटबॉल पर आपको एरिया एलिमेंट कंसीडर करना है, तो एक पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर मार्क करना. ठीक है? अब क्योंकि एरिया एलिमेंट्स अलग अलग होने वाले हैं, तो उनके एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शंस डिफरेंट होने वाली. ये सिंपल सी बात समझ आ गई? इट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एंड द फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस में एरिया वेक्टर एक पर्टिकुलर फेस पे जहां मर्जी मार्क करिए, डायरेक्शन सेम है. कर्व्ड सरफेस में ऐसा नहीं होता है. कर्व्ड सरफेस में
डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स होते हैं तो उनके एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शंस डिफरेंट होती है। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? ओके, अब देखिए, लेट अस सपोज से राइट वाले फेस का एरिया वेक्टर मार्क करना है। तो राइट वाले फेस का एरिया वेक्टर इट विल बी A2 परपेंडिकुलर, अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। गॉट इट? ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बस ये याद रखना है अभी के लिए। बॉटम फेस का मार्क करना है, इट विल बी से A4 वेक्टर। लेफ्ट वाले फेस का मार्क करना है, इट इज सपोज से A4 वेक्टर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो टॉप फेस का मार्क हो गया, बॉटम फेस का मार्क हो गया, लेफ्ट वाले फेस का मार्क हो गया, राइट वाले फेस का मार्क हो गया। अब बेटा फ्रंट फेस का अगर मार्क करना है, ठीक है, तो फ्रंट फेस का एरिया वेक्टर इट विल बी टुवर्ड्स यू। समझ आ गई बात? ओके, अब फ्रंट फेस के बिल्कुल ठीक पीछे जो बॉटम बैक फेस है उस पर एरिया वेक्टर मार्क करेंगे। तो कैसे मार्क करेंगे? उस पर एरिया वेक्टर इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए स्टूडेंट्स फ्रंट फेस और बैक फेस का एरिया वेक्टर मैं बोर्ड पे मार्क नहीं कर पाऊंगा। क्लियर हो गई ये बात? सिंपल सी बात समझ आ गई? ओके, अब स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात एरिया वेक्टर को लेकर। जब आप एरिया वेक्टर मार्क करें या यूज करें तो कैसे करना, हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, जब आपके पास में क्लोज सरफेसेस होंगी, क्लोज सरफेस पर चाहे कर्व सरफेस हो चाहे क्यूब जैसी कोई भी सरफेस हो, तो जो भी क्लोज सरफेस होगा उसमें या तो कर्व सरफेसेस होंगी या फिर फ्लैट फेसेस होंगी। तो कर्व सरफेसेस के केस में एरिया एलिमेंट्स को कंसीडर करना है और फिर उनके एरिया वेक्टर्स की बात करना है। अगर क्लोज सरफेस में फ्लैट फेसेस हैं तो फ्लैट फेसेस पर एरिया वेक्टर आप मार्क कर सकते हैं। क्लियर? और एक पर्टिकुलर फ्लैट फेस पर जब आप एरिया वेक्टर मार्क करेंगे उसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही रहने वाली है। ओके, अब जब आपके पास में क्लोज सरफेसेस हों तो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, हमेशा यूज होगी। जब बोला हमेशा यूज होगी तो हमेशा यूज होगी। क्लोज सरफेसेस पर जब आपने एरिया वेक्टर मार्क करना है तो क्लोज सरफेसेस पर एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में मार्क होता है। किधर मार्क होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि परपेंडिकुलर होता है। कर्व सरफेस में एरिया एलिमेंट लेकर काम करना है, फ्लैट सरफेस में कोई इशू नहीं है, जहां मर्जी मार्क करिए, बस परपेंडिकुलर का ध्यान रखिए। लेकिन जब क्लोज सरफेसेस हैं तो क्लोज सरफेस में जब आप एरिया वेक्टर को मार्क करेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में मार्क करना है। क्लियर? ओके, कॉपी कर लिया, इसको मिटा रहा हूं। तो पहला की पॉइंट, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसे मार्क होता है समझ आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, in the case of closed surfaces, area vector is always perpendicular outward, perpendicular outward। जैसे मैंने अभी बताया था, स्फीयर के केस में मैंने आपको मार्क करके दिखाया है, क्यूब के केस में मैंने मार्क करके दिखाया है। बात समझ आ गई? आउटवर्ड डायरेक्शन में मार्क होता है। ठीक है, ओके। अब फ्रेंड्स बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, पहले एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। हर चार्ज के साथ में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एसोसिएटेड होती है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यह समझा था कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रेजेंस है उसको सिंबॉलिकली हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की हेल्प से मार्क करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अंडरस्टैंड करते हैं। पल्ले पड़ गई बात। अब इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, कोई भी एक रीजन है, there is a region, okay, and in that region there exists some electric field। अब रीजन है, रीजन के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई तो डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है कहीं ना कहीं, या फिर उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी एग्जिस्ट करेंगी। अब इमेजिन करिए स्टूडेंट्स कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ
मेरा राइट और लेफ्ट, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आप इमेजिन कर सकते हैं विच आर रनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इस रीजन के अंदर इमेजिन करिए आप अपना रजिस्टर होल्ड करते हैं, आप अपना रजिस्टर होल्ड कर रहे हैं। रजिस्टर कैसे होल्ड कर रहे हैं? रजिस्टर आप इस तरीके से होल्ड कर रहे हैं कि जो रजिस्टर का प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बोर्ड पे समझाता हूं। लेट अस सपोज सर, आपने रजिस्टर को इस कॉन्फ़िगरेशन में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ। और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मेरा राइट और लेफ्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। आप ध्यान से देखिए सर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर में दिखाई दे रहा है कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रजिस्टर को क्रॉस कर रही है। वर्ड यूज करना है क्रॉस या फिर क्रॉसिंग, ठीक है। तो सर गिवन सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, उस गिवन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्रॉसिंग होता है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बात समझ आ गई? बेसिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, तो पहले बेसिक आइडिया, फिर न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है उसकी बात बाद में करेंगे। गॉट इट सर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग जो बेसिक आइडिया है मैं उसको बोर्ड पे लिख रहा हूं, और स्टूडेंट्स आपने हमेशा इसको यूज करना है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सोचना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की जीरो को यूज करना है, ठीक है। सो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which gives the idea. It is the physical quantity which gives the idea. Let me check the video. Yeah, it is the physical quantity which gives the idea of net crossing of the electric lines of forces through the surface present in the electric फील्ड। गॉट इट? तो क्या होता है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको आइडिया देगा, बताएगा। नेट क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेट क्रॉसिंग से मेरा मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। नेट क्रॉसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थ्रू द सरफेस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लें आप इसको, फिगर के साथ नोट करें, ये बेसिक है। बेटा बात समझ आ गई? अब ध्यान से सुनिए बेटा, नेट क्रॉसिंग को यूज कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स आपने अपना रजिस्टर कंसिडर किया था, हिंदी का वर्ड है आर पार, आर पार। तो बेटा रजिस्टर को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रजिस्टर के अंदर से आर पार होंगी। क्लियर? होप सो आर पार होने का मतलब जानते हैं आप, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सपोज
Let us suppose plus q is a charge located at the point C. Okay? Clear? अब बेटा प्लस क्यू चार्ज की कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैं मार्क कर रहा हूं. ये बेटा मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मार्क की हैं जो प्लस क्यू चार्ज के साथ में एसोसिएटेड. क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्फीयर को कंसीडर करते हैं या किसी भी क्लोज सरफेस को कंसीडर करते हैं. थोड़ा फिगर ठीक नहीं हुआ. लेट अस सपोज स्टूडेंट्स हम एक क्लोज सरफेस को कंसीडर करें. लेट अस सपोज इट एज अ स्फीयर and students suppose say plus q is a charge located at the point 0. तो students plus q चार्ज के नेबरहुड में हमने एक स्फीयर कंसीडर किया है. ठीक है, क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है. समझ आ गई बात? अब स्टूडेंट्स क्लोज सरफेस है तो आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मार्क कर. ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को. ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये सेकंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. अब स्फीयर का लेफ्ट वाला पार्ट, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्फीयर के अंदर आपको एंटर करती हुई दिखाई दे रही है. सेकंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर एंटर करती हुई दिखाई दे रही है. जिन पॉइंट्स से एंटर कर रही है मैंने हाईलाइट कर दी है. ठीक है, अब बेटा वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से फर्स्ट एंड सेकेंड स्फीयर के अदर हाफ, ऑपोजिट हाफ से आपको बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है. क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, इन जनरल स्टूडेंट्स वी कैन से कि बेटा जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्फीयर के अंदर एंटर कर रही थी वो ही या उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्फीयर के ऑपोजिट साइड से एग्जिट कर रही थी, बाहर निकल गई थी. क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स यहां पर बोलेंगे कि नेट क्रॉसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज जीरो. क्या बोलेंगे? द नेट क्रॉसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज जीरो. क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आई उतनी बाहर चली गई. बात समझ आ गई? तो जब कभी भी क्लोज सरफेसेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होती हैं, जब कभी भी क्लोज्ड सरफेसेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होती हैं और क्लोज सरफेस के इंटीरियर में कोई चार्ज ना हो, तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सिचुएशन कुछ ऐसी होती है. हम क्या बोलेंगे यहां पर, ये जो स्फीयर है इट इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज प्लस क्यू, और ये चार्ज प्लस क्यू है ये स्फीयर के बाहर है. क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिट कर रही है. या यूं कहा जा सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो स्फीयर को दो बारी क्रॉस कर रही है. एक बारी एंट्री कर रही है और एक बारी एग्जिट कर रही है. तो स्टूडेंट्स कन्वेंशन है जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आए, जैसे स्फीयर का ये लेफ्ट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इस लेफ्ट वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फर्स्ट एंड सेकेंड स्फीयर के अंदर आ रही है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि लेफ्ट वाले पार्ट से इनवर्ड फ्लक्स है या लेफ्ट वाले पार्ट पर इनवर्ड फ्लक्स है. क्लियर? अब फिगर में क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है वही दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो स्फीयर के अंदर आ रही है वही स्फीयर के ऑपोजिट साइड से एग्जिट हो रही है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आ रही हैं उनको नेगेटिव रखा जाता है, जो बाहर जा रही हैं उनको पॉजिटिव रखा जा रहा है. मतलब इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव एंड आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव. अब फिगर में जैसा दिखाई दे रहा है दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आ रही है, तो जो इनवर्ड फ्लक्स है वो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से. लेट अस कॉल दिस इनवर्ड फ्लक्स एज -2. ठीक है, और जो आउटवर्ड फ्लक्स है, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वही दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो अंदर आई थी वही दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑपोजिट साइड से बाहर जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑपोजिट साइड पर आउटवर्ड फ्लक्स है. क्लियर?
यहां पर भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर गई हैं, ठीक है, तो आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज +2। अब जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट विल बी +2 -2 विच विल बी इक्वल टू 0। पल्ले पड़ गई बात, क्लियर, ओके। अब जैसा कि मैंने आपको की आइडिया दिया था, बेसिक पॉइंट दिया था, ये वो फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो नेट क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थ्रू द सरफेस के बारे में आइडिया देती है, ठीक है। अभी तो मैथमेटिकली मैंने आपको समझाया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, तो इसका मतलब नेट क्रॉसिंग 0। तो नेट क्रॉसिंग से आप शायद, नेट क्रॉसिंग क्या होती है शायद आप समझ गए हो, क्लियर। सो नेट क्रॉसिंग नॉन जीरो तब मानी जाती है जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्रॉसिंग सिर्फ एक बार हो, सिर्फ एक बार अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्रॉसिंग हो रहा है तो नेट फ्लक्स है या नेट क्रॉसिंग है। मैं समझाता हूं, ये समझ आ गया। तो यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे द नेट क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस through the sphere is 0. Net crossing of the electric lines of forces through the sphere is 0, ठीक है। अब स्फीयर का एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं कि बेटा नेट क्रॉसिंग 0 कब नहीं होती, मतलब नेट क्रॉसिंग का कोई एक यूनिक वैल्यू होता है। समझ आ गई बात, देखिए let us suppose say it is a sphere, again a closed surface, and the charge plus q is located at its center, okay। अब स्टूडेंट्स चार्ज प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो होती हैं। अब चार्ज प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, चार्ज प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैंने मार्क की। अब चार्ज प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न ध्यान से देखिए। जैसा कि पता है कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैंने व्हाइट बोर्ड पर मार्क की हैं, आप ध्यान से देखिए, सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस स्फीयर को आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। किधर क्रॉस कर रही है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। वो जो लास्ट इलस्ट्रेशन थी उससे कंपेयर करिए। लास्ट इलस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दो बारी क्रॉस कर रही थी, एक बारी स्फीयर के अंदर एंटर कर रही थी और ऑपोजिट साइड से बाहर निकल रही थी। यहां पे देखें, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है स्फीयर को सारी आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। समझ आ गई बात? तो यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्रॉसिंग द स्फीयर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब there is some net crossing, of the electric lines of forces through the sphere। पल्ले पड़ गई बात? The electric lines of forces are crossing the sphere in the outward direction, okay, clear? That is, there is some net outward flux through the sphere
गॉट इट स्टूडेंट्स? ये सिंपल सी बात समझ आ गई। कॉपी करें फिगर के साथ, कॉपी करिए फिगर के साथ। डन? सर दोबारा देखते हैं, अब की बारी फिर से स्फीयर कंसीडर करते हैं और नेगेटिव चार्ज उसके सेंटर पर देखते हैं, ठीक है? Let us suppose it as a sphere and minus q is the charge located at its center. फिर से नेगेटिव चार्ज के साथ जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एसोसिएटेड होती है, मैंने बोर्ड में मार्क की है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, दे आर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन. The electric lines of forces are in the radially inward direction. Okay? Now in this case, friends, all the electric lines of forces which are associated with the charge plus q, they are crossing the sphere in the inward direction. तो फ्रेंड्स हर एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्फीयर को एक बार क्रॉस कर रही है. इसलिए फ्रेंड्स the net crossing is having some value. The net crossing of the electric lines of forces का कोई वैल्यू है, ठीक है, जीरो नहीं है, ठीक है. लास्ट टू लास्ट इलस्ट्रेशन के साथ कंपेयर करिए. मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लक्स. यूजुअली टीचर्स क्या करते हैं, पब्लिक क्या करती है, गॉस लॉ पढ़ाना होता है, फ्लक्स की डेफिनेशन देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, और आगे निकलते हैं, गॉस लॉ भी बता देते हैं, गॉस लॉ को प्रूव भी कर देते हैं, डेरिवेशंस भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है. लेकिन बेटा अल्टीमेट प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में. तो जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिक आइडिया क्या है, क्लियर नहीं होगा, पल्ले नहीं पड़ेगा. न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ होगी, कॉम्पिटिटिव लेवल पर गड़बड़ होगी. तो बड़ा ध्यान से क्लियर करें. मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेट क्रॉसिंग, ठीक है. नेट क्रॉसिंग से मतलब क्या है, बस उसको क्लियर कर लें, फ्लक्स का बेसिक क्लियर हो जाएगा. फ्लक्स क्या होता है डिफाइन कर देंगे, फ्लक्स को कैसे यूज करना है गॉस लॉ बता देगा. तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है, ठीक है. तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, यहां पर नेट क्रॉसिंग अगेन इट इज नॉट जीरो, इट इज समथिंग. तो व्हाट यू आर गोइंग टू से इन दिस पर्टिकुलर केस, in this particular case there is some inward flux through the sphere. Got it? There is some inward चलिए मैं जैसे लास्ट टाइम लिखा था वैसे बता. द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्रॉसिंग द स्फीयर in the inward direction. The electric lines of forces are crossing the sphere in the inward direction. Okay, so there is some net inward flux. There is some net inward flux through the sphere. बात समझ आ गई? गॉट इट? कॉपी कर लें.
हो गया? क्लियर हो गई बात? तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ वो बेसिक्स क्लियर कराने वाला हूं जो गॉस लॉ में काम आने वाला है। डेरिवेशंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इन बेसिक्स को जब भी गॉस लॉ को यूज करना है, और स्टूडेंट्स गॉस लॉ हर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। बोर्ड्स में इट कैन बी ऑफ 5 मार्क्स, इट कैन बी ऑफ 3 मार्क्स। कॉम्पिटिशन्स में इलेक्ट्रोसेट से अगर कुछ आएगा तो स्टूडेंट्स यूजुअली गॉस लॉ फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, तो आज ही क्लास में स्टूडेंट्स हम वो बेसिक टर्म्स जो यूज होने वाली हैं इन द गॉस लॉ एंड हाउ टू यूज गॉस लॉ में सिर्फ उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया? इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कन्वेंशनली इनवर्ड फ्लक्स is taken negative and outward flux is taken positive. इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है। बात समझ आ गई? ओके, डिफाइन करेंगे अभी फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसे डिफाइन करने से पहले स्टूडेंट्स चलिए एक काम करते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं। कॉपी कर लें इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डिफाइन करना, तो फिर से स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से करते हैं। रीजन कंसिडर करते हैं। रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट से लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब की बारी आप रजिस्टर को ऐसे नहीं रखेंगे, आप रजिस्टर को हल्का सा टेढ़ा रखेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, now we are considering a flat surface which is present in the electric field. ओके, और जो फ्लैट सरफेस है उसका जो फेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर इंक्लाइंड है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यहां पर एरिया वेक्टर मार्क करना होगा। लेट अस सपोज जो फ्लैट सरफेस है वो ऐसे है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी। अब एरिया वेक्टर मार्क करना है। अब एरिया वेक्टर जब आप मार्क करेंगे, आप अगर ऐसे मार्क करते हैं तो नो डाउट परपेंडिकुलर है सरफेस के, मार्क किया जा सकता था। आप ऐसे भी मार्क करते हैं या अगर ऐसे मार्क करते हैं किया जा सकता है, तब भी परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है मार्क करना कैसे है। स्टूडेंट्स, जब आप एरिया वेक्टर मार्क करेंगे, खास ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर हमेशा इस तरीके से मार्क किया जाता है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल एक्यूट हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं,
एरिया वेक्टर मार्क किया, ऐसे मार्क किया था, परपेंडिकुलर तो हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मार्क नहीं करना, यहां पे कोई आउटवर्ड या इनवर्ड नहीं होता। जब सिर्फ फ्लैट सरफेस होती है, क्लोज सरफेस नहीं होती है, तो एरिया वेक्टर कैसे मार्क करना है? इस तरीके से मार्क करना है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल एक्यूट हो। समझ आ गई बात? सो सिंस आई एम सेइंग, लेट अस सपोज वेक्टर E is say the electric field, and it is say vector A is the area vector of the surface, and theta is the smaller angle between their directions. ठीक है? तो न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? The electric flux through the surface is the scalar product of the electric field, and the area vector of the surface which is present in the electric field. Got it? So since यहां पर ये डेफिनेशन दे रहा हूं, ये डेफिनेशन, the electric flux through the surface, present in the electric field is the scalar product of electric field and the area vector of the surface present in the electric field. What it says? The electric flux through the surface present in the electric field is the scalar product of the electric field and the area vector of the surface present in the electric field. सिंपल सी बात है, समझ आ रही? ओके, डन। लेट अस सपोज से phi, बेटा phi से डिनोट कर रहे हैं, phi be the electric flux through the surface present in the electric field vector E. Okay, and vector A be the area vector of the surface. ओके, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखना है? चलिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखना है मैं बताता हूं, आप इसको कॉपी करें क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो मैं मिटा रहा हूं यहां। डन। यहां पर डेफिनेशन था, यहां पर एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, द फ्लक्स y is written as vector E dot vector A. बेटा ये डेफिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। This flux phi is written as E into say A into say cos theta. E into A into cos theta. अब ये जो कैपिटल A है स्क्वायर, इसका ध्यान रखें, कैपिटल A है, इसका ध्यान रखें बेटा। ये एरिया है सरफेस का
जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। क्लियर? लेट अस सपोज अगर आप कोई भी एक फ्लैट सरफेस कंसीडर करते हैं या कैसा भी सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है, वो सरफेस पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये जो कैपिटल ए है ये सिर्फ उतने पार्ट का एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। पल्ले पड़ गई बात? ठीक है, कैपिटल ए इज द मैग्नीट्यूड, चलिए मैग्नीट्यूड वर्ड हटा लेते हैं, इज द एरिया ऑफ द surface और its part। अगर सरफेस पूरी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो सरफेस का एरिया हो गया। अगर सरफेस पूरी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में है और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो सिर्फ कैपिटल ए सरफेस का उतने पार्ट का एरिया होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, A is the area of the surface, okay, or its part present in the electric field। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, मैं समझा देता हूं इस बात को, बोर्ड पर समझा देता हूं। देखिए, let us suppose ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और कोई भी एक फ्लैट सरफेस है, कुछ ऐसे। क्लियर? ओके, समझ आ गई बात? इमेजिन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बॉटम से सीलिंग की तरफ है, ओके, और आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऐसा फ्लैट सरफेस कंसीडर कर रहे हैं जिसका कुछ पार्ट से इतना पार्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इतना पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। समझ आई बात? तो एरिया वेक्टर तो मार्क कर लेंगे, परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर? लेकिन कैलकुलेशंस में क्या पूरा एरिया यूज करना है? नहीं, सिर्फ उतना एरिया यूज करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में A is the area of the shaded portion of the surface present in the electric field। पल्ले पड़ गई बात? तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का, न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द एरिया ऑफ द सरफेस और इट्स पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, and cos of theta. Theta is the smaller angle between the direction of the electric field vector and the area vector. Got it? Clear? Yeah. अब जैसा स्टूडेंट्स हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, हमने डेफिनेशन में बोल दिया कि बेटा स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट भी होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स
is the scalar quantity and its SI unit is, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट डालते हैं न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट डालते हैं मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और अगर सर पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो वोल्ट मीटर। तो स्टूडेंट्स याद रखें SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर वर्ड्स में लिख लें, वोल्ट मीटर। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेसेस कैसी होने वाली हैं, एरिया वेक्टर कैसे मार्क करना है, आज का जो लेक्चर है बेटा याद रखें पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लर्निंग कर लें इसकी। नेक्स्ट लेक्चर में आज का जो ये टॉपिक है ये बार बार यूज होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके।